کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مومن تھے اور حضور کے اعلان نبوت کے بعد بھی ابو بکر صدیق درجہ ایمان پر تھے۔ جیسے فتویٰ کے میدان میں ہم تقلید کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، اسی طرح عقائد کے ہمارے امام ہیں، عقائد کے میدان میں ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ اور امام ابو الحسن اشعری۔ یہ عقائد کے دو امام ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی جتنی بھی زندگی گزری، چاہے اعلان نبوت سے پہلے والی تھی، چاہے اعلان نبوت کے بعد والی تھی، ابو بکر صدیق کی ساری زندگی عین رب ذوالجلال کے رضا کے تابع گزری، عین رب ذوالجلال کے تابع گزری ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد 15 اس کے آخر میں 4 رسائل لکھے۔ ایک ہے الصوف والعقاب علی المسیح الکذاب، اور دوسرا رسالہ اعلیٰ حضرت کا قہر الدیان علی مرتد بقادیان، اور تیسرا اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے الجزار الدیانی علی مرتد بقادیانی، اور اعلیٰ حضرت کا چوتھا رسالہ ہے جزا اللہ عدوبہ بیابائی ختم النبوہ۔ اس رسالے کے آخر کے اندر یہ اعلیٰ حضرت نے 4 رسائل فرقہ قادیانی کے خلاف لکھے ہیں، اور یہ جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے جزا اللہ عدوبہ بیابائی ختم النبوہ، اور اسی طرح آپ جلد 29 کے اندر چلے جائیں، اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے تنزیح المکانۃ الحیدریہ عن وسمع عن الجاہلیہ۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک بات بیان فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوگوں، اسلام کے دامن میں 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن پر ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی بھی کفر کا دمادہ نہیں پڑا۔ ان میں ایک ہے حضرت ابو بکر صدیق، سارے کہو سبحان اللہ۔ ایک ہے حضرت ابو بکر صدیق، اور دوسری شخصیت ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ۔ اعلیٰ حضرت نے اقسام بیان کیا ہے اسلام کی۔ آپ نے فرمایا اسلام میثاقی یہ مرتبہ بھی حاصل ہے ان دونوں شخصیتوں کو، اسلام فطری یہ مرتبہ اور مقام بھی حاصل ہے ابو بکر صدیق کو ہو، مقام توحیدی یہ مقام اور مرتبہ بھی حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق کو۔ حضرت ابو بکر صدیق مقام انس سے لے کر وقت پیدائش تک، وقت پیدائش سے لے کر سن شعور تک، سن شعور سے لے کر جو ہے حضور کے اعلان نبوت تک، اعلان نبوت سے لے کر موت تک ہر حال میں مومن رہے، اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کفر والا، ہر حال میں حضرت ابو بکر صدیق مومن رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ ہر حال میں حضرت ابو بکر صدیق مومن رہے، یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ آپ نے تقریباً 37 برس حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کو جو گزارے وہ بھی مومن رہے، اور مورخین نے بیان کیا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، اور برہان قبلہ مفتی صاحب پہنچ چکے ہیں، تو میں محترم محمد عقیل نوادش صاحب ان کو دعوت پیش کرنے لگا ہوں۔ ان سے پہلے جو میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ہر حال میں مومن رہے، جو ہر حال میں مومن رہے، اور جس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت، تو فتوحات مکیہ کے اندر محی الدین ابن عربی اور نسیم الریاض کے اندر امام خفاجی، کنز العمال کے اندر امام علی متقی ہندی،
फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी के अंदर इमाम इब्ने हजर अस्कलानी और दीगर मुअल्लिफीन ने भी बयान किया कि अबू बकर सिद्दीक तिजारत की वजह से शाम की तरफ गए। रास्ते में एक चर्च आया और वहां दरवाजे पे एक बुजुर्ग खड़े थे जिनकी उम्र 450 साल बताई जाती है। और उन बुजुर्गों ने नजर की, अबू बकर इस जवान को देखा तो फरमाया बेटा इधर मेरे पास आओ। अबू बकर सिद्दीक को अपने चर्च के अंदर हुजरा के अंदर ले गए, देखा सामने बिठाया तो रात खोली, पूछा बेटा नाम क्या है? आपने नाम बताया। बाबा का नाम क्या है? नाम बताया। खानदान क्या है? कुरैश है। किधर से आए हो? मक्का से आया हूँ। वो तो रात को देखते जाते हैं, पूछते जाते हैं। आपने फरमाया बेटा जो तुम्हारी ये दाएं वाली रान है इसके ऊपर क्या काला तिल मौजूद है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के रान रह गए। उन्होंने कहा बाबा जी ये बात मुझे पता है, मेरे बाबा को पता है, मेरी अम्मी को पता है, मेरी इस रान पे तिल है, आपको कैसे पता चला है? तो बाबा जी मुस्कराए, उनकी 450 साल उम्र है, अज़दी उनका नाम है। बेटे को देखते हैं और मुस्कराते हैं, मुस्कराकर फरमाते हैं बेटा ये तो रात है, इसके अंदर तेरी गुफ्तार भी लिखी हुई है, तेरा अंदाज भी लिखा हुआ है, इसके अंदर तेरा नाम भी लिखा हुआ है, तेरे बाबा का नाम भी लिखा हुआ है, तेरा खानदान भी लिखा हुआ है। यहाँ इस अर्ज के अंदर तो ये भी लिखा हुआ है कि मक्के के अंदर अन करीब जो खातमुन नबीय्यीन हैं, जो आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं, वो ऐलान नबूवत फरमाने वाले हैं और उन पे सबसे पहले जो ईमान लाने वाले होंगे वो भी क्या होंगे? आप ही होंगे। बेटा आप जल्दी जल्दी जाओ, रहमत कायनात उन्होंने ऐलान नबूवत फरमा दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उधर से वापस पलटे, दरवाजे पे दस्तक दी, हुजूर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सुना है आपने ऐलान नबूवत फरमा दिया है, सच फरमाया है? तो आपने फरमाया हाँ मैंने ऐलान नबूवत फरमा दिया है। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे अपनी गुलामी के अंदर कबूल कर लीजिए। और फिर ईमान भी ऐसा लाया, हुजूर ने फरमाया लो मुज़िना ईमानुन अबू बकरिन व ईमानु अहलिल अर्द लरुज्जहा। सारी मखलूक का ईमान एक पलड़े में हो और दूसरे पलड़े में अबू बकर सिद्दीक का ईमान हो तो अबू बकर सिद्दीक के ईमान वाला पल्ला भारी। और हजरत मौला अली आखिरी बात करने लगा। हजरत मौला अली आप फरमाते हैं, शान बयान करते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की। कौन? हजरत मौला अली। वो अली के दिल का नाम लेना भी इबादत है। अज़्ज़िक्र अलीयुन इबादा, अन-नज़रु इला वजही अलीयुन इबादा। मन अहब्ब अलिय्यन फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह। मन अबग़द अलिय्यन फक़द अबग़दनी व मन अबग़दनी फक़द अबग़दल्लाह। नज़र इला वजही अलीयुन इबादा, अज़्ज़िक्र अलीयुन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलुल ख़तबा। इतनी शान वाला जो हसन हुसैन का बाबा है, सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, आपके सरताज हैं। आप फरमाते हैं लोगों वल्लाहि मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन अतका वला अतहर वला अफजल। इस्लाम के दामन में मौला अली बयान कर रहे हैं और किसकी शान को? अबू बकर सिद्दीक की शान को बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि इस्लाम के दामन में आज तक कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा पाकीज़ा हो, जो अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा आला हो, जो अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा अफजल हो। सबसे अफजल भी अबू बकर सिद्दीक हैं, सबसे आला भी अबू बकर सिद्दीक हैं और सबसे पाकीज़ा भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। ये कौन बयान कर रहा है? ये मौला अली बयान कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बात ये भी पता चली कि सहाबा वो हैं कि जिनकी शाने आले बैते अतहार बयान करते हैं और आले बैते अतहार वो हैं कि जिनकी शानों को सहाबा बयान करते हैं। ये मकाम और मर्तबा है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बल्कि एक रिवायत है वो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकले ना तो साथ अबू बकर सिद्दीक है। तो
सामने हुजूर तशरीफ फरमाया। अब हजरत अबू दरदा फरमाते हैं मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के आगे चल रहा था, तो हुजूर ने देखा अबू बकर की तरफ भी मेरी तरफ भी, तो हुजूर मेरे करीब आ गए। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हुजूर मेरे पास आ गए, फरमाया अफजल बंदे के तुम आगे चलते हो। अबू बकर सिद्दीक के आगे चल रहे थे हजरत अबू दरदा। हुजूर ने देखा तो फरमाया अफजल बंदे के आगे चलते हो। तो इससे एक बात ये भी पता चली कि अफजल बंदे के आगे चलना ये बात हुजूर को पसंद नहीं है, ये बात हुजूर को पसंद नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के आगे चले अबू दरदा, तो अबू दरदा से फरमाया हुजूर ने कि अफजल बंदे के आगे चलते हो। तो हजरत अबू दरदा हाथ जोड़ कर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अबू बकर सिद्दीक है ये क्या मुझी से अफजल है? हुजूर ने फरमाया अबू दरदा ये तुझ से भी अफजल है। फिर हजरत अबू दरदा या रसूलुल्लाह ये मदीने वालों से भी अफजल है? तो हुजूर ने फरमाया ये मदीने वालों से भी अफजल है। तो फिर हजरत अबू दरदा अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ये मक्के वालों से भी अफजल है? तो हुजूर ने फरमाया ये मक्के वालों से भी अफजल है। तो फिर हजरत अबू दरदा सिर्फ मक्के और मदीने वालों से अफजल है? हुजूर ने फरमाया सुनो ये मक्के वालों से भी अफजल है, मदीना वालों से भी अफजल है, बल्कि जो पहले गुजर चुके उनसे भी अफजल है, जो कयामत तक आने वाले हैं उनसे भी अफजल है, और ये जमीन वालों से भी अफजल है, आसमान वालों से भी अफजल है। हुजूर ने फिर फरमाया, हुजूर ने फरमाया वल्लाहि मा तलअत शम्सु वला गरबत अला अहदिन अफजलु अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। अबू दरदा आज तक सूरज न गुरूब हुआ है, ऐसे शख्स पर न तुलू हुआ है जो अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो जाए। सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप हैं। लोगों ये मकाम और मर्तबा है हजरत अबू बकर सिद्दीक का कि जिनकी शाने मौला अली बयान फरमा रहे हैं, और जिनके मकाम और मर्तबा और शाने खुद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक की जात के साथ मोहब्बत करो, हुजूर के तमाम सहाबा के साथ मोहब्बत करो, हुजूर की आल के साथ मोहब्बत करो। यही हमारे महफिल का दर्स होता है, यही पैगाम होता है। लोगों हुजूर के सहाबा का दामन अगर छोड़ दोगे तो दुनिया और आखिरत के अंदर तबाह बर्बाद हो जाओगे। अगर हुजूर की आल का दामन छूट गया तो फिर भी न दुनिया के अंदर कोई जगह है न आखिरत के अंदर कोई जगह है, दोनों को साथ लेके चलना है। हमने हुजूर के असहाब से भी बेपनाह मोहब्बत करनी है और हुजूर की आल से भी बेपनाह मोहब्बत करनी है, इसलिए कि इनके सदके से वास्ते से आज हम तक इस्लाम पहुंचा है। आज हमें जो इज्जतें मिली हैं इन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, और इन लोगों की वजह से, इन सहाबा और अहले बैत की वजह से आज हमारे सरों पे भी पगड़ियां हैं, आज हमारे सरों पे भी इज्जत का जो है वो ताज है। तो ये सारी जो इज्जतें हर मोमिन हर मुसलमान को मिली है तो ये सहाबा और अहले बैत अतहार की वजह से मिली है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमारी हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।